Good evening, everybody. Welcome back to Understand UPSC. This is Satyam Jain, and this particular video is very important for you people because recently the Central Consumer Protection Authority of India, this is a government agency that protects consumers and penalizes wrong practices in the industry, in the market. It has come up with some huge probes and revelations displaying or showcasing what has been going wrong in the coaching institutes of India that is training the students of UPSC CSC examination. So in this particular video I'll show you two articles whereby the CCPA has highlighted its probe, and what is more important is that I'll be going beyond these articles to actually tell you what is happening on ground. CCPA ने तो जो बातें बताई हैं वो बहुत डिटेल्ड नहीं है, बहुत ग्राउंड रियलिटी नहीं है, बट हैविंग बीन इन दिस प्रोसेस फॉर more than half a decade now and having been in the process of giving interviews back to back, I know the market and I know what anti-competitive, what wrong deceiving practices are there. So I'll take you through the ground realities, and my only appeal and urge to all of you is that if your conscience tells you that this video is highlighting the truth, you need to make it reach to masses, you need to make it reach to more and more people because ultimately it will benefit you. तो पूरा सुनिएगा बैठ के, at least listen to my opinion, my analysis. I'll give you the facts from my particular experiences, from facts of various toppers. Listen to the analysis, but let us first look at what CCPA has to say about these particular coaching institutes. So this is the first article. This is by Business Today. I'll take you through the article whereby it mentions the names of some institutes and says that among 20 coaching institutes under scanner for misleading claims, the sources of Business Today is saying that 20 coaching institutes are under scanner for misleading claims. मिसलीडिंग क्लेम्स, आपको मिसलेड किया जा रहा है, यू आर बीइंग मिसलेड बाय रॉन्ग क्लेम्स. क्लेम्स ऑफ व्हाट? क्लेम्स ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स सेइंग दैट ये टॉपर हमारे यहाँ से निकले हैं, दैट 90 टॉपर्स आउट ऑफ 100 आर फ्रॉम आर इंस्टीट्यूट, दैट दिस टॉपर इज फ्रॉम आर इंस्टीट्यूट. This comes just month after the CCPA slapped 1 lakh fine on ICRA IS Institute and Rao Study Circle for misleading advertisement. इन इंस्टीट्यूट्स पे ऑलरेडी 1-1 लाख रुपए का फाइन लग चुका है. अब इनके लिए 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, समुद्र में बूंद की तरह है, लेकिन उससे बड़ा है, कुछ उससे बड़ा है आपको जो ये डिसीव कर रहे हैं वो. लेट अस हैव अ लुक एट व्हाट CCPA हैज एग्जैक्टली सेड. Then the sources of Business Today claims that Unacademy, Byju's, Drishti IS and Vajra Reddy etc. other 20 institutes are under the same scanner. Now look at a very revealing fact here. Look at this. I want you to read this. The issue came to the notice of CCPA through the website of ICRA IS Institute. The authority found that the institute was established in 2018. Okay? 2018, and yet the authority found that the testimonials of All India rank holders Tina Dabi, AIR 2015, Athar Amir ul Shafiq Khan of 2015, Himanshu Kaushik of 2015 and Safin of 2017 were hosted by ICRA IS Institute, which itself was set up in 2018. जो इंस्टीट्यूट खुद 2018 में सेटअप हुआ है वो 2015 2017 के इंस्टीट्यूट्स के क्लेम्स डाल रहा है कि ये इंस्टीट्यूट्स, ये टॉपर्स हमारे यहाँ से निकले हैं. Listen to this. Thereby deceiving consumers into believing that such successful candidates owe their success to the institution. Please इसको बहुत ध्यान से सुनिए. Deceiving the consumers. Who are the consumers for such big brands, such big names, such misleading agencies? कौन है कंज्यूमर? आप और मैं, the aspirants, the students. We are being deceived into believing कि ये कैंडिडेट्स इनके यहाँ से निकले हैं. इसकी एक एक करके बहुत परतें खोलूंगा आज, बहुत लेयर्स खोलूंगा. Just be with me for another 10-15 minutes and you'll understand what is going on here. I want to take you through another article which is even more shocking. Here the government is cracking down on coaching institutes for misleading claims of alumni clearing IAS exam, that it is their alumni who has cleared the IAS exam. Listen to this particular thing which is the most bizarre. ये पढ़िए आप. The magnitude of inflated claims by institutes can be gauged by the fact that while 933 candidates were selected after the UPSC 2022 final results, advertisements from only 10 coaching institutes claimed a total of over 3500 alumni which had been selected. सिर्फ 10 इंस्टीट्यूट्स ने दिखा दिया कि 3500 लोग हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं. 3500 पीपल हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम आर्ट. सिर्फ 10 ऐसे 100,000 इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जो अंधे होके क्लेम कर रहे हैं, जो अनदेखे क्लेम कर रहे हैं, जो अनवेरीफाइड क्लेम कर रहे हैं. टोटल 933 लोग सिलेक्ट हुए थे 2022 में, उसमें से 10 इंस्टीट्यूट्स ने 3500 लोगों का नाम दिखा दिया. कैसे पॉसिबल है ये?
किसका बेवकूफ बनाया जा रहा है, किसके पैसे लूटे जा रहे हैं? Very important. This is very, very important for new people, for old people to understand. All these institutes are the ones that are being probed. अब ये sources से है कि जैसे भी है, notices have already been issued to 20 IS institutes. और ये सिर्फ यहाँ पे दिक्कत ये है कि CCPI is just restricted to these 10 or 20 institutes. If they will go deeper, they'll find that probably every institute in India, दो चार को छोड़ के, is doing the same practice, doing the same malpractice, doing the same ill practice. ये देखिए, देर आर इंस्टेंसेस ऑफ 5 इंस्टीट्यूट्स क्लेमिंग द सेम पर्सन एज एल्यूमिनाई. एक ही इंसान को 5 इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहे हैं कि हमारे यहां से हैं. ये देखिए, देन आई वांटेड टू रीड दिस. Nearly 1/3 of the shortlisted candidate gone to clear the mains exam. Institutes are able to get at least some candidates selected who had only availed of the free mock interview sessions conducted by the institute. ये देखिए आप, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल लाइन दैट आई वांट यू टू रीड टुडे. द मोस्ट क्रूशियल लाइन दैट आई वांट यू टू रीड टुडे. इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में किसी भी तरीके से बस बच्चे को ले आओ, उससे एक फॉर्म भरवा लो, एंड देन एवरीथिंग एल्स गोज टू कंप्लीट अटर गार्बेज. उसको उस प्रोग्राम से बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको वो कुछ भी फायदा नहीं हुआ है चाहे वहां से. आपने रैंक क्लेम कर दी कि ये स्टूडेंट हमारे यहां से है. नया बच्चा, उसको क्या पता है कि कौन सी रैंक है, क्या क्या पढ़ा था इन मैम ने यहाँ से, क्या पढ़ा था इन सर ने यहाँ से, क्या पढ़ा था इस टॉपर ने यहाँ से, इस रैंकर ने यहाँ से. उसने तो देख लिया कि आपके बड़े बोर्ड पे लिखा हुआ है कि 10 out of 10 टॉप रैंकर्स फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट. अरे कौन बताएगा कि वो सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस लेने आए थे? आई वॉन्ट टू शो यू 2 very brilliant screenshots by a rank holder this year, and then I will talk about something that is very, very, very important. So see this first. This is a screenshot from Smriti Mishra AIR 4 channel. This was put on May 26. The results were out on May 23, and ma'am has categorically said here, please read this. In due course of time, you will all see my pictures being used by various coaching institutes. Please note that there is a difference between, किस चीज में difference आपको note करना है, enrolling in any classroom course and actually finding it useful. मैं कितने टाइम से आप लोगों को बोल रहा हूँ, just because you are enrolled in a particular course, how can an institute claim a rank on that basis? ऐसा हो सकता है ना कि मुझे enroll करके पता चला हो कि ये तो garbage है, ये तो वेस्ट ऑफ मनी था, वेस्ट ऑफ टाइम था, ऐसा भी तो हो सकता है. देन हाउ आर यू क्लेमिंग माई रैंक जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्म दैट आई फिल्ड, एनरोलमेंट दैट आई डिड, और पैसा जो मैंने तुम्हें दे दिया उसके बेसिस पे क्यों तुम क्लेम कर रहे हो? सेकेंड, एनरोलिंग इन अ क्लासरूम प्रोग्राम वर्सेज एन इंटरव्यू कोर्स. ये दिस इज द बिगेस्ट स्कैम ऑफ द यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री, द बिगेस्ट स्कैम ऑफ द यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री. आपने इंटरव्यू कोर्स किसी का ज्वाइन कर लिया, अब उस इंस्टीट्यूट को क्या पता है कि एवरी 1/3 पर्सन हु कम्स एंड ज्वाइंस योर इंटरव्यू प्रोग्राम विल बी अ रैंकर. ये सिंपल सा एक फैक्ट है जो कि लिखा हुआ है इन द यूपीएससी नोटिफिकेशन दैट दे विल कॉल 3 times द पीपल फॉर इंटरव्यू. सो इफ यू एनरोल 100 and for example say 100 people, so at least 33 people will be in the final rank, and it will be very easy for you to claim their ranks. बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है ये. दिस इज़ हाउ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर मैनिपुलेटिंग. वो क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती आपको बस किसी तरीके से इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में एनरोल करा लेंगे, एंड वंस दे डू दिस, आफ्टर दिस कुछ नहीं. इसके बाद देर इज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, देर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी. द इंटरव्यू गाइडेंस वॉज हेल्पफुल, वॉज इट नॉट हेल्पफुल. आखिर में बस क्या आना है, ये आना है कि हाँ हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स निकल गए हैं. आई एम टेलिंग यू, देर इज अ इंस्टीट्यूट, कुछ डेली करके उनके नाम में आता है, विल नॉट टेक द नेम. I am telling you this from personal experience. Before the results were announced on 23rd of May, before the results were announced, there was a YouTube video that was scheduled. A YouTube video that was scheduled with the title, with the thumbnail saying, every third selection in UPSC 2022 from dash 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 daily dash dash from our institute. रिजल्ट से पहले, रिजल्ट डिक्लेयर होने के पहले ये वीडियो शेड्यूल्ड था. क्यों? क्योंकि इन लोगों को पता है कि हमने
इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में इतने बच्चों को एनरोल करा लिया है और अब हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं, हमारा कोई एथिक्स तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम बस ये रिकॉर्ड करके डाल देते हैं कि हाँ 300 रैंक्स हमारे यहाँ से आ गई हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे 900 स्टूडेंट्स जो थे वो एनरोल्ड थे, अब उनमें से 1/3 का सिलेक्शन तो होना ही है। बस दिस इज हाउ यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड, दिस इज हाउ यू आर बीइंग मिसगाइडेड। प्लीज यू नीड टू टॉक अबाउट दिस। आप पैसे दे रहे हैं, आपके माँ बाप मेहनत करके वो पैसा कमा रहे हैं, यू कैन नॉट लेट दिस गो, दिस इज नॉट ईजी। सेकेंड चीज देखिए, द सेकेंड थिंग दैट आई वॉन्ट यू गाइज टू सी इज दिस पर्टिकुलर पिक्चर, अगेन फ्रॉम स्मृति मिश्रा मैम। कोई तो टॉपर है एटलीस्ट जो ये बातें बोल के गया है। फ्रॉम स्मृति मिश्रा मैम, 30th May। दिस इज, अब पढ़िए इनको। आई हैव बीन इन द सीरियस प्रिपरेशन फेज फॉर मोर देन 3 years। ठीक है, 3 years का मतलब इतने मिनट्स। आउट ऑफ दीज मिनट्स आई वॉज एसोसिएटेड विद अ रैंडम कोचिंग फॉर 30 minutes ड्यूरिंग द इंटरव्यू स्टेज, एंड नाउ there are blue colored hoardings in ORN and Karol Bagh with my faces on them. I am bad at math, but this does not seem fair. No ma'am, it is not fair. It is very unfair. It is predatory. It is unethical. आप 3 साल मेहनत कर रहे हैं, 4 साल मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम निकाल रहे हैं, और को इंस्टीट्यूट एक रद्दी सा 30 मिनट का मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करा रहा है, एंड दे आर पुटिंग अप देयर ब्लू बैनर्स और ओवर ORN एंड करोल बाग। आपको पता है, मुझे पता है कि किस एकेडमी की बात हो रही है यहाँ पे इन ब्लू बैनर्स में। इज इट फेयर? और मैम खुद बोल रहे हैं, लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट द सेकेंड लाइन ऑफ दिस स्क्रीनशॉट। द इंटरव्यू कोर्स यूजुअली होल्ड्स नो वैल्यू, एस्पेशली ट्रू इन माई केस। मैम बता रहे हैं कि ये इंटरव्यू का मेरे लिए कोई मतलब नहीं था, कोई हेल्पफुल नहीं थे इंटरव्यू कोर्सेज मेरे लिए, फिर भी उस नॉन यूजफुल मिसगाइडेड इंटरव्यू प्रोग्राम के चलते आप यू आर पुटिंग अप द नेम्स ऑफ टॉपर्स ऑन योर ब्लू बैनर्स। Let me tell you something from my experiences and my opinions, if you are interested in hearing the truth. इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम सबसे बड़ा स्कैम है यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री का। वॉट इंस्टीट्यूट्स डू इज कि वो बस आपको ज़बरदस्ती इसमें एनरोल करा लेते हैं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कोई चवन्नी चार्ज नहीं हो रही है इसकी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट के नाम पे बच्चे भर देते हैं, क्योंकि अभी कोई इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच गए तो दे वांट कि यार किसी तरीके से जैसे तैसे लेट अस जस्ट गेट एनरोल्ड एंड किसी तरीके से बस स्कोर मिल जाए, और फ्री है तो इंसान सोचता भी नहीं है। इस फ्री प्रोग्राम के बेसिस पे एक रद्दी सा मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। एक जानते होंगे आप, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहां पे ऐसा मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एस्पायरेंट से कि ये एक ग्लास ऑफ वाटर रखा है, इसको प्रपोज करके दिखाइए, प्रपोज दिस ग्लास फॉर मैरिज। आर यू सीरियस? आर यू सीरियस? ये हो रहा है कि यूपीएससी के इंटरव्यू में आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है? लाखों लोग आपको देख रहे हैं, ये इमेज दे रहे हैं कि आप यूपीएससी के सीरियस इंटरव्यूज में ग्लास प्रपोज कराए जा रहे हैं फॉर मैरिज। मतलब थोड़ा तो जो एथिक्स की बातें कर रहे हो, जो एथिक्स के 200 250 क्लासेस के कोर्स पढ़ा रहे हो, थोड़ा तो उसको एम्बाइब कर लो। देन आई सो अनदर इंटरव्यू ऑफ द सेम इंस्टीट्यूट, जहां पे एक कैंडिडेट को इस चीज पे हैरेस कर दिया कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई है, तुम्हारी एज तो हो गई है। यूपीएससी इंटरव्यूज आर नेवर सच डेरोगेटरी, नेवर गोज दिस पर्सनल। उनको क्या मतलब है कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है? दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क। जबरदस्ती बस क्यों? क्योंकि ताकि कल को शॉर्ट क्लिप बना के वायरल कराया जा सके। इज दिस हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट द ब्यूरोक्रेट्स ऑफ दिस नेशन, द एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट्स, द एस्पायरेंट्स? कि आप उनको ये सिखा रहे हैं कि आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ग्लास को प्रपोज करके दिखाइए। कभी बैठे हैं आप यूपीएससी के इंटरव्यू में? आपको पता है यूपीएससी के इंटरव्यू में कितनी सीरियस कॉन्वर्सेशंस होती हैं? आपको पता है वहां पे किन मुद्दों पे बात होती है? इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम सबसे बड़ा स्कैम है। सबसे पहला रीजन, यहां पे एनरोलमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एंड एवरीबडी नोज दैट 1/3 सिलेक्शन आएगा ही आएगा। तो इन 1/3 सिलेक्शन के बेसिस पे क्या हो जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज 1/3 सिलेक्शंस यू विल क्लेम अ लॉट ऑफ रैंक्स। सेकेंड, they have no idea about the testing of personality of a candidate, no idea whatsoever। सबको उठा के 180 प्लस 190 प्लस मार्क्स दे दिए जाते हैं।
खुश हो जाते हैं सब बच्चे, फिर चाहे इनके 120 आए चाहे इनके 130 आए, दे हैव नो अकाउंटेबिलिटी। एंड बाद में आप लोगों को क्या दिखता है कि अरे देखो इन सर ने तो प्रेडिक्ट कर दिया था कि तुझे आईएएस मिलेगा, तुझे 180 मिलेगा, तुझे 190 मिलेगा। अरे हर हर कैंडिडेट को यही बोला जाता है। आई डिडंट स्कोर गुड इन माई फर्स्ट इंटरव्यू, मैंने अपने पहले पर्सनैलिटी टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं किया था, ठीक है, स्टिल आई वॉज गिवन 190 प्लस मार्क्स बाय इंस्टीट्यूट्स। मेरे पास स्क्रीनशॉट है। मेरे सेकंड पर्सनैलिटी टेस्ट में मैंने खुद समझा कि क्या इश्यूज हैं, क्या इश्यूज रहे, मैंने बहुत इंप्रूव किया, बहुत मेहनत की, एंड मेरा स्कोर यूपीएससी में 35 मार्क्स तक बूस्ट हुआ इन द इंटरव्यू प्रोग्राम, और बहुत अच्छा स्कोर आया। और यहां पे भी सेम था, किसी ने मुझे 190 से कम नहीं दिया था। व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है? तो अगर किसी का भी सिलेक्शन हो जाता है तो आपको तो यही दिखेगा ना कि अरे वाह क्या सर है, इन्होंने तो 190 पहले ही बोल दिया था, पहले बोल दिया था कि सिलेक्शन होना चाहिए। अरे वो सभी को यही बोल रहे हैं यार, बस आपको वो देखने को मिल रहा है जो सिलेक्ट हो गया है। दीज आर द बिगेस्ट स्कैम्स। आई स्टिल रिमेंबर अ कोचिंग इंस्टीट्यूट कॉलिंग मी एंड सेइंग कि सर कार भिजवा देंगे, कैब भिजवा देंगे, आप बस इंटरव्यू देने आ जाइए। क्यों, क्या फायदा हो रहा है तुम्हारा अगर मैं इंटरव्यू देने नहीं आ रहा हूं तो? तुम्हारा फायदा ये हो रहा है कि बस तुम्हें आखिर में रैंक क्लेम करनी है। माय डियर फ्रेंड्स, this is what is happening, this is what is being done. Please do not fall for this. There are big banners all around, there are publicity all around. Nobody is accountable, nobody is transparent enough to tell कि out of these 90 students that have been selected, है ना, top 100 में 90 सिलेक्ट हो गए हैं, इसमें से ये जो 40 हैं, these were just part of interview guidance program। और ये भी क्यों, ये इस पे भी क्यों रुकना है? There should be a method whereby if you claim a rank कि ये रैंक मेरे इंस्टीट्यूट से आई है, that particular individual should give a testimonial, give a written reply, give a written answer that these are the things that I found useful in this particular coaching institute or poaching institute, and then you are allowed to claim it। बहुत सिंपल सी बात है यार कि अगर आपके यहां पे एक एनरोलमेंट हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी रैंक हो गई है। ऐसा हो सकता है ना कि आपके यहां पे एनरोल करने के बाद उस इंसान को समझ में आ गया हो कि आप तो रद्दी पढ़ा रहे हैं, बकवास पढ़ा रहे हैं, विच हैपेंस इन 90% ऑफ द केसेस। तो कैसे आपका क्राइटेरिया बनता है कि आप इस रैंक को क्लेम कर लें? See, now some so-called seniors and some woke seniors will come and say कि आके यहाँ पे ऐसे बस क्रिटिसाइज कर रहा है और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बुरा भला बोल रहा है। माई पॉइंट इज आई एम नॉट अगेंस्ट कोचिंग्स। मैंने कभी नहीं बोला, पिछली वीडियो के बाद भी जब टेस्ट सीरीज की वीडियो बहुत वायरल हो गई तो भी सब लोग ऐसे कुछ वो वॉक जो ये सीनियर्स हैं हमारे आ जाते हैं बोलने कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को गाली दे रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट को गलत बोल रहा है ना। एक वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के सर भी आ गए थे बोलने कि नया बच्चा है कोचिंग को गाली दे रहा है। अरे इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कोई? मैंने कभी कोचिंग को गाली दी ही नहीं। ऑल आई सेड वॉज कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये जो अनएथिकल चीज़ें कर रहे हैं, ये जो मिसगाइड कर रहे हैं, ये गलत है। आप अपने आप में सुधार करो ना। तो बोल रहे हैं कि कोचिंग को गाली दे रहा है। आज भी मैं कोचिंग को नहीं बोल रहा हूं गलत, लेकिन आपके मेथड्स को तो क्वेश्चन किया जाएगा ना। when you can take 1 lakh rupees in fees, 2 lakh rupees in fees, when you can charge for the services you are being provided, why can't you be questioned? अरे आप कोई गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु थोड़ी बन के बैठ गए, फ्री में थोड़ी पढ़ा रहे हैं यार। और आप फ्री में भी पढ़ा रहे हैं यार, मैं कह रहा हूँ आप फ्री में पढ़ा रहे हैं। मेरा एसएफजी का प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, 2023 मेंस के लिए हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। हम 2024 के लिए भी एसएफजी का प्रोग्राम चला रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि कोई हमें फीडबैक नहीं दे सकता, कोई बता नहीं सकता कि हम क्या गलत कर रहे हैं? मैंने तो खुद फीडबैक फॉर्म डाला है यार। मैं फिर से ही बात रिपीट कर रहा हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, आई एम नॉट इवन अगेंस्ट फीस। ऑब्वियसली यार सबको घर चलाना है, टीचर्स को घर चलाना है, इतनी बड़ी टीम होती है, रिसोर्स होता है, कंटेंट राइटर होते हैं, इवैल्यूएटर होते हैं, सबको अपना घर चलाना है। लेकिन जो पैसा ले रहे हो उस पर सर्विस तो डिलीवर करो, उस पर एथिकल तो रहो। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये सबसे काम की बात है आपके लिए। 3 स्टेक होल्डर हैं इस पूरे केस में। देयर आर 3 स्टेक होल्डर्स। 1 आर द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, second are the so-called rankers and toppers, and third are the students, the aspirants, you and me। ठीक है, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले हैं
इनके लिए तो बहुत ज़रूरी हो गया है कि अकाउंटेबल हो जाए। ये क्लेम जो करते हैं ना, ये जो अनएथिकल, अभी पिछली बार मैंने आपको क्या बोला था, पेड मिसगाइडेंस बोला था ना, इस बार क्या है, इस बार तो साफ साफ दिख रहा है ना कि ये अनएथिकल मिसगाइडेंस है। आप अनएथिकल क्यों है? क्योंकि आपने पूछा भी नहीं, यू डिडंट इवन आस्क दैट टॉपर और रैंकर कि आपको इस पर्टिकुलर कोर्स से बेनिफिट हुआ था, कि एंड स्टार्ट क्लेमिंग दैट हाँ आपको बेनिफिट हुआ था तो हम आपके रैंक क्लेम कर रहे हैं। एंड मिस गाइडेंस क्यों है? क्योंकि आपके इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के नाम पे आप क्या पूछ रहे हैं कि वोटर ऑफ क्लास को प्रपोज कर दो। तो आप तो अनएथिकल भी हैं और आप तो मिसगाइड भी कर रहे हैं। तो टुडे दिस इज एन एरा ऑफ अनएथिकल मिसगाइडेंस, तो यू विल हैव टू बी मोर अकाउंटेबल। बताइए ना कि आपके यहाँ से कौन स्टूडेंट्स किस प्रोग्राम से सिलेक्ट हुआ है और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में इस स्टूडेंट को कितना बेनिफिट हुआ, क्या बेनिफिट हुआ, एक्सप्लेन करिए ये चीज़, तब जाके वो रैंक क्लेम करिए। नहीं तो वो रैंक उसके पेरेंट्स की है, उसकी फैमिली की है, उसके खुद की है, आपका कोई रोल नहीं है उसमें। सेकंड, ये जो रैंकर्स और टॉपर्स है इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा और प्रोएक्टिव होके चीज़ों को डिक्लेयर करिए। आप बताइए कि इतने जो इंस्टीट्यूट्स ने आपके नाम छापे हैं, हैव यू एक्चुअली बेनिफिटेड फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूट, या फिर आप क्यों ऐसे चुप रह जा रहे हैं यार? योर साइलेंस इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ रकस इन द मार्केट वेयर बाय द न्यू एस्पायरेंट इज गेटिंग सक्ड इन लाइक लीचेस। You will have to be more proactive in explaining things, in telling things, in explaining it to people कि क्या गलत हो रहा है, ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में मुझे कोई फायदा नहीं हुआ यार, और अगर फायदा हुआ है तो बताइए कि ये फायदा हुआ है। कम से कम पता तो चले कि कौन मेहनत कर रहा है, कौन इंस्टीट्यूट सही कर रहा है। एक्सप्लेन करिए सामने आके, नहीं तो एक्सपोज करिए सामने आके, रिवील करिए सामने आके। एंड लास्टली, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर स्टूडेंट और एस्पायरेंट है, तो आपसे मैं अपील करना चाहता हूं यार, ये प्लीज डो नॉट फॉलो एनीबडी ब्लाइंडली। सिर्फ बैनर्स और बोर्ड्स देख के कि मेट्रो पे किसी के बोर्ड लग गए हैं, ब्लू कलर होर्डिंग्स लग गए हैं या वॉट एवर, ये देख के प्लीज ऐसे सक इन मत हो जाइए, ऐसे पागल मत हो जाइए। स्टार्ट क्वेश्चनिंग यार, आप पैसे दे रहे हो यार, आप सर्विस ले रहे हो, स्टार्ट क्वेश्चनिंग। पूछिए ना इनसे कि ये जो आपने इतने बड़े क्लेम लगा दिए हैं इस टॉपर को, आपके यहां से क्या फायदा हुआ था? What was the benefit that this particular person derived out of your institute? Which course was he or she enrolled in? जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे ये लोग ठीक नहीं होंगे। यू नीड टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, आपका राइट है यार ये, दिस इज योर फंडामेंटल राइट। सदियों से हमें सिखाया गया है कि आप क्वेश्चंस पूछो, आप आके भूल गए हो इस चीज को। प्लीज आस्क द क्वेश्चंस। I still remember there was a coaching institute. One of my friend got selected in 2021. There was a coaching institute that called my friend and said कि आपने हमारे यहाँ पे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए फॉर्म भरा था लेकिन आपने कभी इंटरव्यू नहीं दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग आवर स्टूडेंट। माई फ्रेंड कैटेगोरिकली सेड नो, आई वॉज नॉट योर स्टूडेंट। अगर ये नहीं बोलते यहाँ पे, मैं जो भी द फ्रेंड ऑफ माइन, अगर ये नहीं बोलते कि नो आई वॉज नॉट ए स्टूडेंट, देन दिस पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट वुड हैव क्लेम्ड दिस पर्टिकुलर रैंक। भाई एक फॉर्म भरने पे रैंक यार क्लेम हो जा रही है, इतना आसान है क्या? उस इंसान की 4 साल 5 साल की मेहनत सब पानी है ना? उसकी रातों के नींद चली गई है वो पानी, उसके हाथ टूट गए लिख लिख के वो पानी है। आपका फॉर्म भर दिया इसलिए आपकी रैंक हो गई है। प्लीज ये फोमो से बाहर आइए। अब तो सीसीपीए ने भी इस पर ठप्पा लगा दिया है दैट कोचिंग्स आर मिसलीडिंग, डिसीविंग। अब आपको कितना कितना ठप्पा चाहिए? एंड मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वॉट एवर क्रिटिक्स वॉन्ट टू कम, दे कैन कम एंड दे कैन से वॉट एवर दे वॉन्ट टू से इन द कॉमेंट सेक्शन। आई डू नॉट केयर if you are here just to spread negativity. I do not care about your opinion because I'm here to tell the truth. I have been misguided, I have been misled, I have been deceived. So if I do not speak for it, I am no better than them. अगर मैं जो मेरे साथ गलत हुआ है वो हाईलाइट नहीं कर सकता हूँ तो मैं भी परपेचुएटर हूँ, मैं भी उतने गलत हूँ। एंड दैट इज़ वाई आई विल ऑलवेज कीप स्पीकिंग फॉर द स्टूडेंट्स। आई विल ऑलवेज speak for the student community. Now it is up to you. If you have even a tiniest bit of trust that what I said in this particular video was true and you understood it, please spread this awareness to other students as well. It is your responsibility to do it as a member of the aspirant community.
प्लीज़ चुप मत रहिए, डोंट बी साइलेंस्ड। ऐसे मत सोचिए कि हमें पता चल गया, हम तो होशियार हैं, हमें पता चल गया, बाकी को ना पता चले। आपको नहीं पता कि कोई इंसान जो 1 लाख रुपए सबमिट कर रहा है फीस में, वो कैसे इकट्ठे कर रहा है। और अगर उसको सिर्फ एक बोर्ड देख के वो इंसान 1 लाख रुपए अपनी ज़मीन गिरवी रख के ले आया है, एंड ना उसको वहाँ पे जाके पता चले कि इस इंस्टीट्यूट में तो कुछ भी नहीं कराते हैं, बहुत दर्द है यार उस चीज़ का। सो प्लीज़ इट्स टाइम दैट यू स्पीक अप, है ना। सिविल सर्वेंट बनने के बाद ही नहीं बोलना है, सिर्फ एक सिटीजन की, एक एस्पायरेंट की, एक इंसान की ड्यूटी है कि वो गलत चीज़ को गलत बोले, सही चीज़ को सही बोले। प्लीज़ स्पीक अप, प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड, प्लीज़ स्प्रेड द अवेयरनेस। I'll attach the link of these 2 articles in the description. You need to read them, you need to go through them. Drop a comment telling us if what we have said in this particular video is right or wrong. Do let us know. Thank you so much. Till we meet next time, this is Satyam Jain signing off. I'll always keep speaking for the aspirant community, keep speaking for the student community, because that is who I am and that is where I belong. Jai Hind, signing off.